Good morning students. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhavrao Devaras Saraswati Vidya Mandir, Noida. Dear students, we are going to study a chapter of class 11 today, and you can see on the slide that the name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues. You all the people need to understand that what is the meaning of discovering. Discovering means in this chapter there is a ruler, there is a king Tut, and when he died in his teenage at a very early age, and when he died, so his body was mummified. So some scientists, some archaeologists, what they did, they discovered about his body. So that's why the name of the chapter is Discovering Tut, the saga continues. What is saga? Saga can be a sad story, it can be any kind of story. So in this chapter we will study about Discovering Tut. Deliberately I have done one thing, I have not written the name of the writer, the name of the author, but I am telling you that what exactly is the name of the author. The name of the author is A.R. Williams. I will ask you this name when I will finish this chapter. So just stay focused. So let's move to the next slide. And the next slide, it is written Discovering Tut, the saga continues theme. First of all, we have to understand that what is theme of the chapter. So this theme, the story deals with the mysteries and various theories regarding the life and death of the youngest ruler of ancient Egypt. So this story is basically dealing with the mysteries, that what was the mystery behind the death of King Tut, because he died very early. And exactly what happened in year, this one. So in year 1922, by the famous archaeologist, so I am talking about the famous archaeologist, what is the name? Howard Carter. So he started searching and discovering the mummy of Tut, and finally he wanted to know that what exactly happened with King Tut and how he died. So that is something discussion has been done in this, and after that an X-ray of the body took place, and later on a CT scan also took place of that body which was already dead, but it was kept, it was preserved as a mummy. तो इसमें बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, ये जो चैप्टर है ये डील करता है मिस्ट्रीज के बारे में. मिस्ट्रीज मतलब रहस्यों के बारे में. किस चीज का रहस्य है? लाइफ एंड डेथ. किसकी लाइफ एंड डेथ? टट, जो राजा थे किंग टट, he died at very early age, he was only teenager. तो उसके बारे में ये चैप्टर है. After that, let's move to the next slide. Discovering Tut, the saga continues about the characters. We all the people need to understand that how many characters are there, which are important character, and you must have the basic knowledge about each and every character. So the first character around whom the whole story is, that is King Tut. Okay? So who is our first character? That is King T-U-T. We can call it Tut, we can also call it Tut, as you feel comfortable. Both the pronunciation, they are right. Who was King Tut? The last heir. Heir means in Hindi we call it Uttaradhikari. Okay? So he was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. That means who was ruling Egypt? Only the family of King Tut. His grandparents were ruling, his father was ruling, his great grandparents were ruling. So they were having almost, in Hindi we call it kabja. So they were having that power that only they were the rulers in that particular country. So after that, and its empire for centuries, they were ruling for so many centuries. So this chapter suggests his preserved body was the first to be skinned. So they are saying, Professor Howard Carter is saying that Tut's body was the first body which was preserved, which was kept as a mummy. पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी को, जो राजा लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, वो उसकी बॉडी को दफनाते नहीं थे. उसको क्या करते थे, उस पर एक खास तरह का वो लेप लगाते थे और उस बॉडी को वो प्रिजर्व करके रखते थे, और वो सैकड़ों सालों तक बॉडी खराब नहीं होती थी. तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ किसके साथ? किंग टट के बारे के साथ. इसके बाद आगे चलते हैं. हावर्ड कार्टर, this is a very important character in this chapter. The British archaeologist
who in 1922 discovered King Tut's tomb. हावर्ड कार्टर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं किया था. He hasn't done many things in his life, but finally he decided that he will discover the body of Tut, and he was successful in doing that. So he was very successful, and in 1922 he could do it. Okay, so this is very important point, that in 1922 British archaeologist he was. Who was British archaeologist? That was Howard Carter. So the body was preserved. After that, Zahi Hawass, that is the name, the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Antiquities हम जानते हैं वो चीजें जो बहुत पुरानी होती हैं, सैकड़ों साल पुरानी होती हैं. तो ये क्या थे? ये उसके जनरल थे, राइट? ज़ही हवास ये उसके जनरल हैं इजिप्ट के. इजिप्ट में कहा? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जनरल हैं. तो इन्होंने क्या किया? ही स्कैन्ड किंग टट्स ममी फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. तो वो अच्छे से पता लगा सकें दैट हाउ King Tut died, what exactly happened with his body, what were the reasons of his death. So what he started doing? He did the scanning. He scanned King Tut's body, and as I told you that this was the very first time the body of a person was scanned. Okay, so this is something you have to remember in mind. You have to keep in mind that King Tut's body was the first one whose body was scanned. After that, Amenhotep III, as it is written, King Tut's father, ये King Tut's के या तो फादर थे और ग्रैंडफादर या उनके दादाजी थे, was a powerful ruler who ruled for almost 4 decades. ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे जिन्होंने लगभग 4 decades तक, 4 दशकों तक शासन किया. कहां पे शासन किया? इजिप्ट में शासन किया. इसके बाद एमेनटॉप IV, पुराने जमाने में ऐसे होता था, आप जानते होंगे प्रिंस चार्ल्स, तो चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से बनते हैं. तो बिल्कुल उसी तरीके से एमेनटॉप IV, he promoted the worship of Aten and changed his name to Akhenaten. उन्होंने किसकी पूजा को प्रमोट किया? उन्होंने कहा कि भाई आप जिस गॉड की पूजा करते हैं उनको उन्होंने प्रमोट किया जिनका नाम था एटेन. एटेन क्या है? ये एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रभावशाली ईश्वर हैं जिनकी पूजा वहां पर की जाती थी. उन्होंने उन भगवान का नाम भी बदल दिया. नाम क्या बदल दिया? एखेंटेन. ही आउटरेज द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन. एक और गॉड थे जिनका नाम था एमुन. यहां पे आपको ध्यान रखना है, एटेन का उन्होंने नाम बदला, क्या कर दिया? एखेटेन. और साथ में उन्होंने क्या किया? अटैकिंग एमुन. हु इज एमुन? अ मेजर गॉड. ये बहुत बड़े भगवान वहां के. तो बाय स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स, उन्होंने इनकी इमेज को हर्ट किया, इनको तोड़वाया. ही बेसिकली इंस्टिगेटेड पीपल दैट यू शुड गो एंड स्पॉइल द इमेजेस ऑफ गॉड. व्हिच गॉड? एमुन. तो ये उन्होंने किया, तो उनको इसलिए याद रखा जाता है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. समरी ऑफ डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. बेटा दिस वन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, आज के लिए जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा किंग टट के बारे में, हमने चैप्टर के थीम के बारे में जाना. वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में. सो बी प्रिपेयर्ड. जितना अभी तक आपने पढ़ा है एज अ होमवर्क आई एम टेलिंग यू, इसकी थीम को लर्न करिए प्रॉपरली, इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में लर्न करिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक शर्मा. तो बेटा कल हमने पढ़ा था जो डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, उसकी थीम के बारे में हमने पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दैट चैप्टर. टुडे वी विल स्टडी द समरी. आफ्टर रीडिंग समरी, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते नो इशू, बट समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो समरी ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. A.R. Williams is the writer of this chapter. I told you have to keep in mind who is the writer, that is A.R. Williams, right? Moreover, this chapter is regarding the last heir of the great Pharaoh dynasty, Tutankhamun. So Pharaoh means king, राजा. तो ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर आखिरी उत्तराधिकारी के बारे में है. कौन है वो उत्तराधिकारी? You must keep in mind that उत्तराधिकारी is Tutankhamun. In short, what we call? In short, we call King Tut. So this chapter is about him.
He died in his teenage after ruling for 9 years. Just imagine, केवल 9 साल उन्होंने इजिप्ट पे शासन किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और डेथ भी मिस्टीरियस तरीके से हुई, बड़े रहस्यमय तरीके से हुई. His death gave birth to a mystery. This chapter talks about all the possible mysteries. उनकी जो मृत्यु थी उसने एक जन्म दिया एक विवाद को कि आखिर एक इतने छोटे किंग की डेथ हुई तो हुई कैसे. How he died. After that, the curse where his tomb is lying. क्या उनका जो मकबरा था, right? टॉम हम कहते हैं मकबरे को, जहां उनका मकबरा था, क्या उस पर किसी तरह का कर्ज था, कोई अभिशाप था, कोई श्राप लगा हुआ था. So everybody was very much interested to know that how King Tut died. So his whole life and finally his death, everybody wanted to know about his life, what he did, all the mysteries, all the secrets, and most important secret that was about his death. सब जानना चाहते थे कि एक बच्चा जिसने, बच्चा ही कहेंगे, एक बच्चा जिसने 9 साल ही शासन किया, उसकी डेथ आखिर हो कैसे गई. So that was very very important. इसके बाद Discovery Cook, the saga continuous summary will give you all the facts and information about the death. So it is said over here that if you will read the summary, you will know everything about King Tut. Okay, so let's move to the next slide. Tutankhamun, mind you, in short, what is the name? That is King Tut. Tutankhamun was the last leader of the great Pharaoh dynasty. वो डायनेस्टी मतलब वो वंश जिसने शासन किया था इजिप्ट में, वो उसके आखिरी राजा थे. He was the last king. He was young when he died. जब उनकी डेथ हुई तो वो बहुत यंग थे. यंग मीन्स बहुत छोटे थे, उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, अपनी टीनेज में थे. टीनेज 13 से 19 साल होता है. According to some people, his death was a murder. There are so many people they believe that he did not die. बहुत सारे लोग मानते हैं वो मरे नहीं, उनको किसी ने मारा. Somebody murdered him. किसी ने उनकी हत्या की. In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter. सन 1922 में, ये बात आपको याद रखने की है, 1922 और हावर्ड कार्टर. जो हावर्ड कार्टर हैं, उन्होंने सन 1922 में उनका जो पूरा का पूरा मकबरा है उसको उन्होंने खंगाल दिया. An archaeologist after 80 years, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे. After 80 years, लगभग 80 साल बाद, he was taken for the CT scan to solve the mystery of his life and death. वो जानना चाहते थे कि भाई आखिर हुआ क्या. Finally, what happened to the King Tut? How he died? What was his life mysteries? So they wanted to know. So that's why they took the body for a CT scan. Okay. So let's move to the next slide. And his father or grandfather. Now they are talking about his father and grandfather. Amenhotep III was a very powerful pharaoh. He was also a very very powerful king. Ruler over a period of 40 years. उन्होंने लगभग 40 साल शासन किया. कहां पर शासन किया? उन्होंने इजिप्ट में शासन किया. याद रखिए, जो यहाँ पर एमेनटॉप III है, वो या तो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर. इट इज अ कंफ्यूजन ओवर हियर. ये बात श्योर नहीं बताई गई है. सो एमेनटॉप III was a very powerful pharaoh. Ruled over, ये ruled होना चाहिए, ruled over a period of 40 years. Moreover, his son Amenhotep IV, और उसके बाद उनके बेटे आए Amenhotep IV, succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अजीब सा ही पीरियड, जो इजिप्ट का पूरा शासन था, जो इतिहास था, उसमें शुरू किया. किसने किया? Amenhotep IV ने. मतलब किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर हो गए एमेनटॉप III, और उनके जो बेटे हुए वो हुए एमेनटॉप IV. उनको इस नाम से बुलाया गया. तो उन्होंने क्या किया? His name changed to Akhenaten, which means servant of Athens. उन्होंने अपना नाम रख लिया Akhenaten. इसका मतलब क्या था? एथेंस में जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनके वो क्या हैं? वो उनके सर्वेंट हैं, उनके वो सेवक हैं, उनके लिए वो काम करने वाले हैं. He changed the religious capital from Thebes to Amarna. उस समय इजिप्ट की जो धार्मिक राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी थेब्स. उन्होंने नाम बदल दिया. क्या नाम कर दिया? अमरना कर दिया. जैसे हमारी जो धार्मिक राजधानी है, हम क्या मानते हैं? हम में से कुछ लोग अयोध्या को मानते हैं, कुछ लोग मथुरा को मानते हैं. तो उसी तरीके से उन्होंने नाम को बदल दिया. लेटर ही अटैक्ड एमुन. बाद में उन्होंने आक्रमण किया एमुन पर. एमुन कौन है? अ गॉड
एक भगवान है, ruined his images, उनकी सारी की सारी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके सारे के सारे जितने भी वहां पर पिक्चर्स लगी थी सब हटवा दी, तो उन्होंने सब उसको तोड़वा दिया। इसके बाद कहते हैं who died very soon, लेकिन उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। तुतनखामुन set on the powerful power and ruled for 9 years। इसके बाद कौन आते हैं? हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है? किंग टट। What he did, उसके बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया। कहां पर रूल करना शुरू किया? When Tut's mummified body was found, उसके बाद जितने भी लोग हैं, जो प्रोफेसर हार्वर्ड हैं, उनको क्या मिला? किंग टट की बॉडी मिली। कैसी बॉडी मिली? ममीफाइड। अब ममीफाइड क्या होता है? आई जस्ट टोल्ड यू इन अर्लियर लाइफ what the powerful people used to do to preserve the body. It was a very simple process. All the people used to apply some lotion. We call it resin. English में हम इसको resin कहते हैं। So they used to apply it on the body, so it could have been preserved. It was so simple, so nice. तो उन्होंने कहा उनकी बॉडी मिली। He had lots of gold. बॉडी के साथ क्या मिला? बहुत सारा सोना मिला, बहुत सारी ज्वेलरी मिली, and wealth, बहुत सारा धन मिला। कार्टर गॉट हिम आफ्टर सो मेनी इयर्स, और ये बॉडी प्रोफेसर कार्टर को काफी एफर्ट्स करने के बाद मिली थी, काफी कोशिश करने के बाद मिली थी। ही ट्राइड हार्ड एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड द बॉडी आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द ट्रेजर्स। अब जितना भी खजाना था साथ में, उनकी बॉडी के साथ क्या मिला? बहुत सारी ज्वेलरी मिली, कुछ शराब मिली, लिनन के अंडरगारमेंट्स मिले। तो वो जितना भी सामान मिला उन्होंने क्या किया? उसको एग्जामिन किया। He planned to examine his 3 nested boxes। उनके बाद जो किंग टट हैं, उनका जो कॉफिन है, कॉफिन मतलब वो बक्सा जिसके अंदर लाश रखी जाती है, उन्होंने उसको भी एग्जामिन करने का प्लान बनाया। And many parts of the treasures in the tomb were already misplaced। उन्होंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे जो हिस्से हैं, there are so many things, they are already misplaced, they are not kept well। तो ये उन्होंने उसमें देखा। इसके बाद his tomb was found rock cut 26 फीट अंडर द ग्राउंड। उनका जो टॉम्ब है वो मिला चट्टानों को काट कर। कहां मिला? नीचे, लगभग 26 फीट नीचे था ग्राउंड के। which also had some wall paintings। और जब वो नीचे गए तो वहां पर कुछ खूबसूरत सी वॉल पेंटिंग्स लगी थी। इसके बाद इट रिवील्स दैट ही वाज सप्रेस्ड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल। उनकी जो कॉफिन है, उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी जो प्रिजर्व्ड ममी है, आफ्टर सीइंग दिस इट वाज वेरी इजी टू जज दैट इनको जब भी रखा गया होगा यहाँ पर, तो वो महीना कब का था? या तो मार्च का था या अप्रैल का था। वन ऑफ द कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। जब वहां पर उन्होंने कॉफिन्स को इंस्पेक्शन किया तो कॉफिन से कार्टर साहब प्रॉब्लम में आ गए, थोड़े से कंफ्यूज हो गए। द गम्स यूज्ड टू पेस्ट टट टू द लोएस्ट ऑफ द सॉलिड गोल्ड। वो जिस लोशन से, वो जिस रेसिन से चिपकाया गया था उनकी बॉडी को, किंग की बॉडी को, किंग टट की बॉडी को, तो उन्होंने क्या किया? टफ, इसमें लिखा है कॉफिन वाज टफनिंग एनफ दैट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस। अब वो इतने बुरे तरीके से चिपक गया, इट वाज स्टिकिंग सो बैडली दैट इट वाज ऑलमोस्ट गेटिंग इम्पॉसिबल टू सेपरेट इट। उसको अलग करना इम्पॉसिबल हो रहा था उनके लिए। He put the boxes in the sun for numerous hours। उन्होंने काफी घंटों तक पूरे के पूरे कॉफिन को उसको रखा धूप में, ताकि वो हीट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए एंड मे बी इट लूजन्स, ये लूज हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने जो सोचा वो काम नहीं करा। At last he removed the adhesive with the chisel and hammer। chisel आप जानते हैं छेनी, hammer we know हथौड़ा। Then with the help of chisel and hammer he had to remove the body। उन्हें बॉडी को अलग करना पड़ा, सेपरेट करना पड़ा। Carter sensed he did not have any other choice than cutting the mummy from limb to limb। कार्टर की समझ में आ गया कि भाई इसको हम इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। What we will have to do, we will have to cut each and every part of the body। हमको उनके शरीर का एक एक हिस्सा अलग करना होगा। हाथ पहले अलग करेंगे, फिर टांगे अलग करेंगे, फिर सर अलग करेंगे। मतलब एक प्रोसेस they have to follow, but each and every part, एक एक अंग, limb means अंग को अलग करना होगा। Thieves would have robbed the gold and treasures। वो ये भी समझते थे कि हो सकता है चोर आ जाएं, वो क्या करें, कुछ खजाना चुरा लें, जो ज्वेलरी रखी है वो चुरा लें। आपको पता होना चाहिए पुराने जमाने में उस समय ये मान्यता थी कि आप जो भी सामान रख देंगे डेड बॉडी के साथ वो अगले जन्म में काम आएगा। So this was a tradition and custom। So whenever somebody used to die, they used to keep some treasures। They used to keep gold, they used to keep razors। Even the razor was kept। एक रेजर भी रखा गया था उनके लिए। लिनन के अंडरगारमेंट्स वो पहनते थे तो वो भी रखे गए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी चोरी हो सकती है।
His man first removed the head of the mummy. ये पॉइंट आपको याद करने वाला है कि जब सबसे पहले उनके अंगों को अलग किया गया तो सबसे पहले हेड को अलग किया गया. Then they cut off each and every joint. उसके बाद जितने भी शरीर में जोड़ होते हैं सबको अलग कर दिया. हाथ को यहाँ से अलग कर दिया, टांगों को यहाँ से अलग कर दिया. इसके बाद after the process of removing all the body parts, they placed it on the layer of sand. जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक एक अंग को अलग कर लिया, so what they did, they kept the whole body on sand. रेत पे उन्होंने रखा. They kept the parts in a wooden box and placed it at the original place. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हिस्सा था बॉडी पार्ट्स का सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसी एक बॉक्स में रखा और फिर इसकी ओरिजिनल जगह उन्होंने इसको पहुंचा दिया. इन जनवरी 2009, अब बात आ गई जनवरी 2009 की, ये आप ध्यान से सुनेंगे. द बॉडी वाज टेकन आउट फॉर अ सीटी स्कैन. अब की बार बॉडी को फिर से बाहर निकाला गया. क्यों निकाला गया? बॉडी का सीटी स्कैन कराया गया. आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जनरली सीटी स्कैन होता है, सब पता चल जाता है शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बॉडी पार्ट कैसे काम कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन, राइट. तो कहते हैं which takes 100 of x-rays, उनके सैकड़ों एक्सरे करे गए, केवल सीटी स्कैन नहीं, and generates a 3D image, उनकी इमेज बनाई गई 3D, आजकल तो 4D भी आ रहा है. That night after the scan, the workman passed his body from tomb into a box. उस रात को जितने भी लोग थे वहां पर, कारीगर थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो बॉडी है उसको उन्होंने लिखा है that night after the scan, जब स्कैन हो गए जितने भी वर्कमैन है, passed his body from the tomb into a box. तो जो टॉम्ब है, मकबरा है, वहां से उठाकर बॉडी को एक बॉक्स में डाला गया. They went through the ramp and stairs and lifted the body on a hydraulic trailer that was holding the scanner. उन्होंने क्या किया, उस बॉडी को उठाया और एक हाइड्रोलिक ट्रेलर के माध्यम से उठाया, इनकी हेल्प से उठाया. वो सीढ़ियों पर गए, स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियां, वो सीढ़ियों पर भी गए and lifted the body, बॉडी को उठाया. इसके बाद that was holding the scanner, इस हाइड्रोलिक जो ट्रेलर इससे क्या जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था एक स्कैनर. The scanner suddenly stopped. अब वहां पर क्या हुआ, जब वो स्कैन कर रहे थे तो वो स्कैनर अचानक काम करना ही बंद कर दिया, उसको ठीक से, it was not working properly. After the use of a pair of spare fins, फिर उनके पास कुछ स्पेयर में, उनके पास कुछ अलग से फेंस पड़े हुए थे, पंखे पड़े हुए थे, उन्होंने पंखे का इस्तेमाल किया और बॉडी को सक्सेसफुली स्कैन किया गया. उसके बाद 3 घंटे के बाद उन्होंने क्या किया गया, द बॉडी वाज केप्ट इन हिज रेस्टिंग प्लेस, बॉडी को वापस उठा के रख दिया गया, राइट. सो ये जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो किंग टट की बॉडी है वो एक पहली बॉडी थी जिसका स्कैन किया गया, वो एक पहली बॉडी थी जो कभी स्कैनिंग के लिए गई एंड ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज. इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब इसका कंक्लूजन क्या हुआ. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू विल गेट टू नो कंक्लूजन ऑफ डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. टू कंक्लूड मतलब बात को खत्म करते हुए, discovering Tut, the saga continues. Somebody tells you that Tutankhamun, I repeat, the nickname is King Tut. This is the nickname, also known as Tut, was a brave ruler, वो एक बहुत ही बहादुर शासक थे, who of the great Pharaoh dynasty, he belonged to a really very very powerful pharaoh. Pharaoh means the family of king. He died a mysterious death and is resting in peace in his tomb now. उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से डेथ हुई और अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी वास्तविक जगह वो आराम कर रहे हैं. So this was a very very interesting story. You learn about the characters, you learn about the summary, you learn about the theme, you learn about A.R. Williams. So this chapter will help you a lot. बेटा बाकी का हम पढ़ेंगे इसके अगले हिस्से में. We will study about question answers. We will study about some important vocabularies and we will also study about long question. Thank you so much. Good morning everybody. My name is Deepak Sharma. I am presenting English from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir. Dear students, we were studying a chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. तो बेटा हमने इसकी समरी पढ़ ली है, हमने इसकी थीम पढ़ ली है, हमने इसकी कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं और उसके बाद हमने इसका पार्ट 3 पढ़ लिया. पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा, पहले 2 पैराग्राफ पढ़े, आज हम अगले 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे. सो जस्ट कीप योर फोकस ओवर हियर. सो बेटा लेट्स प्रोसीड. उसके बाद जो A.R. विलियम्स है वो कहते हैं, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज डिसेंडेड
into the cramped rock cut tomb. ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहरी भर पूरी दुनिया से जितने भी टूरिस्ट आए थे, जितने भी पर्यटक आए थे, जितने भी घूमने फिरने वाले लोग आए थे, वो सब आए और जो किंग टट है उसकी मम्मी को देखने के लिए वो आए। तो वो लोग क्या किया उन लोगों ने, वो डिसेंड कर गए, नीचे उतर गए। क्रैम्ड, जो एक होल टाइप में बना हुआ था, जो एक तंग उनकी कब्र बनी हुई थी, वहां पर वो उतर गए। रॉक कट टॉम्ब, ये चट्टानों को काट के थी। some 26 feet underground to pay their respects, और सब लगभग 26 फीट नीचे गए। क्यों? क्योंकि उन सबके दिल में किंग टट के लिए बहुत ज्यादा लगाव था, किंग टट के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी, किंग टट के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था। तो वो अंदर चले गए टू पे देयर रिस्पेक्ट। वो सभी इस तरीके से क्या कर रहे थे, वो अपनी रिस्पेक्ट को, उनके प्रति अपने सम्मान को जाहिर कर रहे थे। इसके बाद दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। गेज का मतलब होता है घूरना, स्टेयर करना, किसी चीज को ध्यान से देखना। वो सब देख रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे। किसको? म्यूरल्स को। म्यूरल्स क्या होता है? पेंटिंग्स। वहां पर दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई थी बहुत खूबसूरत, तो वो सब उन्हीं म्यूरल्स को देख रहे थे। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, पेंटिंग कहां बनी हुई थी? ब्यूरियल चैम्बर। ब्यूरियल मतलब जहां पर उनकी कब्र को, किंग टट की कब्र को दफनाया गया था, तो वहां पर वो बना हुआ था। उसके बाद एंड पियर्ड एट इट्स ग्लाइडेड फेस, और सब लोग पियर, वो ध्यान से देख रहे थे, वो झांक रहे थे किंग टट के ग्लाइडेड फेस की तरफ, उस चेहरे की तरफ जिसका सीटी स्कैन किया गया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, इस पूरी की पूरी मम्मी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इसका कॉफिन था, वो बक्सा था जिसके अंदर इस मम्मी को रखा गया था। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों था? क्योंकि इस पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। इसके ऊपर ये जो कॉफिन था, ये खुद अपने आप में एक डेड बॉडी की तरह था, एक मम्मी की तरह था, इसलिए ये बहुत स्पेशल था। तो वो इसको देख रहे थे, आउटर कॉफिन लिड, उसके ढक्कन को देख रहे थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, अब वहां पर जितने भी विजिटर्स थे उनमें से कुछ ने, जो वहां पर गाइड बुक होती है उसको ठीक से देखा, उसको ठीक से पढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने ये सब किया विस्पर में। विस्पर का मतलब धीमी आवाज में बात करना, फुसफुसा के बात करना, या फिर कानों में बात करना। तो इस तरीके से उन्होंने बातचीत की। अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी विजिटर्स चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब होता है गहन विचार करना, बहुत ज्यादा सोचना। शायद वो सब विचार कर रहे थे टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि किस तरीके से किंग टट की अनटाइमली डेथ हुई, मीन्स समय से पहले ही, क्योंकि टीनेजर 19 साल, 18 साल, 17 साल मरने की उम्र नहीं होती किसी की, तो फिर आखिर उनकी इस तरीके से डेथ क्यों हुई, तो इस बारे में वो जानना चाहते थे। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द पैरोस कर्स, या फिर वो थोड़ा शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे और सोच रहे थे जो फेरो हैं, राजा हैं, उनका जो अभिशाप है, उनका जो श्राप है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी उस समय कि भाई जो भी किंग टट की बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो किंग टट उसको छोड़ेंगे नहीं, तो कुछ इस तरह की मान्यता थी। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, वो इस बारे में भी सोच रहे थे कि क्या ये बात सच में सही है कि जो भी व्यक्ति उनकी बॉडी को देखने आएगा, उस बॉडी को छुएगा, उस पर नजर डालेगा, मतलब कुल मिलाकर उसको डिस्टर्ब करेगा, तो क्या कोई अभिशाप उन पर आएगा, क्या ये बात सच है? तो वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे। ये बेटा लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन है, एक भी लाइन बुक से मिस नहीं हुई है, तो आपको किताब लेने की हाथ में जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो ममी है उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हालत क्यों अच्छी नहीं थी? हालत इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि उसको निकाला जा चुका था एक बार, तो इसलिए उसकी हालत अच्छी नहीं थी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि 1920 में जो कार्टर हावर्ड है उन्होंने क्या किया था, बॉडी को उसके टॉम्ब से, उसकी कब्र से निकाला था, इसलिए इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सेड ज़ही हवास, ये बात कौन कहते हैं? ये कहते हैं ज़ही हवास। ज़ही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जो एंटिक्विटीज, जो पुराने प्राचीन जो तरीके हैं, जो प्राचीन चीजें होती हैं, सामान होते हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट में, सुप्रीम काउंसिल के। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ फर्स्ट लुक, क्योंकि जब वो बॉडी पर पहली बार फर्स्ट लुक देखने के लिए झुकते हैं कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। कौन झुकते हैं?
हावर्ड कार्टर झुकते हैं। कौन थे वो? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब वो इसको देखने के लिए झुकते हैं, वो इन 1921 हावर्ड कार्टर ने ही 1922 में डिस्कवर किया था टट्स टॉम्ब, किंग टट के मकबरे को। याद रखिएगा ये बात, प्रोफेसर कार्टर हावर्ड कहें या हावर्ड कार्टर कहें, इन्होंने ही पहली बार इस मकबरे को ढूंढ के निकाला था। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, काफी वर्ष उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली वो 1922 में सफल हुए। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, निरर्थ। तो कहते हैं इट्स कंटेंट्स थ्रू हेस्टली ransacked इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसका जितना भी सामान था उसको एंटिक्विटी में रखा गया और ये पूरे तरीके से पूरा था, मतलब कोई भी चीज उस समय तक गायब नहीं हुई थी। तो यहाँ पे कहते हैं they remain the richest royal collection ever found and become part of Pharaoh's legend। वो कहते हैं आज तक किंग टट की मम्मी के साथ जितना भी रॉयल कलेक्शन मिला, चाहे सोना मिला, चांदी मिली, हीरे जवाहरात मिले, जो भी उनकी बॉडी के साथ मिला, वो सबसे रॉयल, सबसे रिच, सबसे महंगा कलेक्शन था। किसका? वो सबसे महंगा कलेक्शन था किंग टट का। तो ये यहाँ पे कहते हैं इससे बढ़िया और इससे महंगा रॉयल कलेक्शन आज तक नहीं मिला है, वो ये कहते हैं। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी जो वो सामान है वो सबसे ज्यादा अटेंशन प्राप्त करता है। तो इस बात को भी यहाँ पे कहते हैं। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन आफ्टर लाइफ। पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि जो भी आप हैं इस दुनिया में, आप जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जीवन है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान की जरूरत पड़ती है, तो वो मम्मी के साथ, डेड बॉडी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सामान रख दिया करते थे। तो ये वही कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ सामान रखा गया, आफ्टर लाइफ में काम आए। क्या रखा गया? बोर्ड गेम्स रखे गए, अब ब्रॉन्ज रेजर, दाढ़ी बनाने का ब्रॉन्ज का रेजर रखा गया, लिनन अंडरगारमेंट्स, उस समय लोग जो अंडरवियर पहनते थे, जो बनियान पहनते थे, वेस्ट पहनते थे, दैट यूज्ड टू बी मेड ऑफ लिनन। लिनन बहुत अच्छा फैब्रिक माना जाता था, आज भी लिनन एक अच्छा फैब्रिक है। तो केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कुछ फूड के केसेस, खाने के डब्बे रखे गए, कुछ शराब रखी गई। तो इस तरह का सामान उन्होंने रखा। तो बेटा आज मैंने आपको पढ़ाए हैं ये 2 पैराग्राफ, इसके बाद मैं आपको आगे चलेंगे, हम लोग लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका होमवर्क मैं आपको बताता हूं। इस जो 2 पैराग्राफ हैं इन पर बेस्ड आप छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बनाएंगे, छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल जैसे आप पूछ सकते हैं हु वाज हावर्ड कार्टर, तो हावर्ड कार्टर का आंसर क्या आ गया? हावर्ड कार्टर वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन विच ईयर डिड ही डिस्कवर किंग टट्स बॉडी, तो उसमें आप बता सकते हैं ही डिस्कवर्ड किंग टट्स बॉडी इन 1922। सो बेटा दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज दीपक शर्मा। बेटा हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था डिस्कवरिंग टट के बारे में। वी आर स्टडिंग लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। जब तक आप इस पीपीटी पर हैं, जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैंने लाइन वाइज लाइन बना के दिया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली पुट योर फोकस ओवर हियर। तो बेटा लास्ट टाइम हमने जहां भी पढ़ा था उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोस फनररी ट्रेजर्स, तो कहते हैं काफी महीनों तक वो क्या करते रहे? रिकॉर्डिंग करते रहे, हिसाब बनाते रहे फेरो का फनररी ट्रेजर्स। जो राजा है किंग टट, उनका जो भी फनररी ट्रेजर्स था, फनररी ट्रेजर्स का मतलब ऐसा सामान जो उनकी बॉडी के साथ मिला था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। जो हावर्ड कार्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका जो कॉफिन था, जो ताबूत था जिसके अंदर उनकी बॉडी को रखा गया था मम्मी बना के, उन्होंने उसका ठीक से इंस्पेक्शन करना शुरू करा, ठीक से उनकी जांच पड़ताल करनी उन्होंने शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड। सबसे पहले जब उन्होंने उसको खोला तो उन्हें उसमें क्या मिला? उन्हें उसमें मिला एक श्राउड। उन्हें उसमें मिला एक श्राउड। यहां पे ये वर्ड है श्राउड, ये वाला। तो जब उनको वहां पे एक श्राउड मिला, श्राउड को हम हिंदी में कहते हैं कफन, तो उनको वहां पे एक कफन मिल गया। एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स, ये सजा हुआ था, एकदम बहुत ही सुंदर था। किससे सजा हुआ था? गार्लैंड से। गार्लैंड्स क्या होता है? फूलों की माला होती है। किस तरह के फूल हैं? सबसे पहले कहते हैं विलो, विलो के फूल हैं। एंड ऑलिव लीव्स, जैतून की पत्तियां। ऑलिव का मतलब होता है जैतून, जैतून की पत्तियों से इसको सजाया गया था। वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन, सेलरी का मतलब होता है अजवाइन, तो वाइल्ड सेलरी से इसको सजाया गया था। लोटस पेटल्स,
इस पर कमल के फूलों के पत्ते रखे हुए थे, कमल के फूलों से भी उस बॉडी को डेकोरेट किया गया था। एंड कॉर्नफ्लावर्स, कॉर्नफ्लावर्स आप जानते हैं, भुट्टे, तो वो भी था उसके अंदर, कॉर्न के फ्लावर्स थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च एंड अप्रैल, इन सभी चीजों की हालत देखकर ये समझ में आ रहा था प्रोफेसर कार्टर हावर्ड को कि हाँ, ये जो इनकी डेथ है ये या तो मार्च के महीने में हुई या फिर अप्रैल के महीने में हुई, क्योंकि कौन से फूल कब उगते हैं और कब तक वो उनकी जो लालिमा है, उनकी जो खूबसूरती है वो चली जाती है, वो देख के बताया जा सकता है। तो वो देख के बता सकते थे कि भाई इनकी जो डेथ हुई है मार्च में हुई या अप्रैल में हुई। When he finally raised the mummy, और जब अंत में वो मम्मी के पास तक पहुंचे, तो he ran into trouble, परेशानी में आ गए। बॉडी को देखने के बाद he ran into trouble, he was facing so many problems. The ritual raisins had hardened, cementing tucked to the bottom of his solid gold coffin. As I told you earlier that there was a resin which was used to preserve the mummy. पुराने ज़माने के लोग अमर होना चाहते थे और वो मानते थे कि हम बॉडी पर एक लेप लगा दें, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेसिन। तो उस रेसिन को लगाया हुआ था उनकी मम्मी पर ताकि बॉडी पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। तो उन्होंने उस रेसिन को लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ भाई, ये जो रेसिन है इसकी वजह से बॉडी वो स्टक कर गया है, वो चिपक गई है। किससे चिपक गई है? वो उस कॉफिन से चिपक गई है और वो एकदम टफ हो गया है, सीमेंट की तरह मजबूत हो गया है। No amount of legitimate force could move them. वो ये भी समझ गए कि कितनी भी ताकत आप लगा लो, अब इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये भी उन्होंने बताई इस बात को यहाँ पे। कार्टर wrote later what was to be done. उसके बाद कार्टर साहब खुद ही लिखते हैं कि भाई अब आखिर क्या किया जाना चाहिए, आगे हम क्या करें, क्योंकि बॉडी हैज कंप्लीटली स्टक टू दैट कॉफिन, तो अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इसको निकालना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। The sun can beat down like a hammer, this for South in Egypt. उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं इस बॉडी को रख दूंगा धूप में, अगर मैं इस बॉडी को रख दूंगा सूरज में, तो शायद ये बॉडी कॉफिन से अलग हो जाए, शायद ये बॉडी गेट सेपरेट फ्रॉम द कॉफिन, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, इट डिड नॉट हैपन एक्चुअली, एंड द कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स, एंड कार्टर साहब डिड द सेम, ही केप्ट द बॉडी इन सन, ताकि जो रेसिन है वो लूज हो जाए, ढीला हो जाए वो पदार्थ, बट इट डिड नॉट हैपन। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, काफी घंटों तक पूरी की पूरी मम्मी को उठाकर उन्होंने ब्लेजिंग, काफी तेज धूप थी, टेम्परेचर वाज वेरी हाई, उन्होंने वहां पर रखा, बट रिजल्ट वाज जीरो, ऐसा नहीं हुआ। दैट हीटेड इट टू 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 97.2 के आसपास होता है। So, but it was 149 degree Fahrenheit, but let me tell you, the body did not get separated from that coffin. Nothing budged, no reaction, nothing happened, zero. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king remains. Now, Professor Carter says कि अगर हम इस बॉडी को अलग करना चाहते हैं तो हमें चिजल मतलब छेनी का इस्तेमाल हम करते हैं प्लास्टर छुटाने के लिए, किसी सामान को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए, तो हमें छेनी का और हथौड़े का, हैमर, वी विल हैव टू यूज, तभी ये चीजें अलग हो सकती हैं, वरना अलग नहीं होंगी। तो बेटा इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं केवल ये 2 स्लाइड्स। आई एम नॉट टीचिंग यू सो मच, मैं आपको बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप बोर ना हो। अगेन आपका होमवर्क, आपको इस पे दोनों पैराग्राफ पे 2-2 क्वेश्चन बनाने, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनाने, एंड राइट द आंसर्स इन योर फेयर कॉपी। क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे अप टू विच व्हाट वाज द टेम्परेचर हावर्ड कार्टर सेट व्हेन ही केप्ट द बॉडी इन द सन, कितना टेम्परेचर उन्होंने रखा जब बॉडी को धूप में रखा, सो इट वाज 149 डिग्री, राइट। आप सवाल पूछ सकते हैं, व्हाई हावर्ड कार्टर केप्ट द बॉडी इन द सन, उन्होंने धूप में बॉडी को क्यों रखा, तो ये आप रख सकते हैं। तो बेटा दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज दीपक शर्मा। बेटा वी आर स्टडीइंग अ चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ पार्ट 7, लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट पढ़े हैं, पार्ट संख्या वहां पे लिखा गया है।
So this is very very important that you study line by line. We will not waste any time and let's move forward. So बेटा आगे बढ़ते हैं. किंग टुट्स डिमाइस का मतलब होता है डेथ. जो किंग टट की डेथ है वॉज अ बिग इवेंट बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. शाही स्टैंडर्ड से भी, शाही पैमानों से भी वो जो डेथ थी वो बहुत ही एक बड़ा जो इवेंट थी, घटना थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ फैमिलीज लाइन. अपने परिवार में जितने भी लोग थे उनमें जो लोग राजा बने उनमें वो अंतिम व्यक्ति थे. एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उनकी जो मृत्यु थी वो वास्तव में एक समाप्ति थी, एक खात्मा थी. किसका खात्मा? एक पूरे के पूरे डायनेस्टी का, एक पूरे के पूरे वंश का. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. लेकिन वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ, क्या रहस्य है, ये बात केवल एक रहस्य ही रह गई, ऐसा इसमें कहा गया. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि किंग टुट की जो डेथ है वो एक रहस्य है. एमेंटॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल फेरो. यहां पर कहते हैं टट के फादर या उनके ग्रैंडफादर ये बहुत ही पावरफुल राजा थे. फेरो का मतलब राजा. हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स. एक डिकेड में 10 साल होते हैं और इन्होंने लगभग 4 दशकों तक मतलब 40 साल तक इजिप्ट पर शासन किया. एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज. और इनके समय में जो पूरी की पूरी डायनेस्टी थी वो अपने गोल्डन एज, एक बहुत ही स्वर्ण काल था उनकी डायनेस्टी का, ऐसा यहां पर बताया गया. हिज सन एमेंटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम. उनके जो बेटे हैं एमेंटॉप फोर्थ वो उनके बाद राजा बने, वो उनके सक्सेसर थे. एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. और उनका जो कार्यकाल था उसको माना गया एक बहुत ही अजीब सा पीरियड. पूरे के पूरे उनकी जो डायनेस्टी है, जितने भी राजा बने, तो एमेंटॉप फोर्थ का पीरियड एक अजीब सा पीरियड माना गया, एक स्ट्रेंज पीरियड माना गया. द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन. यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो नए राजा हैं उन्होंने प्रमोट किया किसकी पूजा को? एटेन की. द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू एखेंटन. उन्होंने नाम भी बदल लिया और क्या कर दिया? एखेंटन कर दिया. राइट, अपना नाम उन्होंने क्या कर दिया? एखेंटन. और द सर्वेंट ऑफ एटेन, इसको आप कह सकते हैं, एखेंटन का मतलब होता है वो जो ईश्वर हैं एटेन, उनका सेवक, उनका दास. तो उन्होंने ये नाम रख लिया. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेंटन. और उन्होंने जो धार्मिक राजधानी थी उसको बदल दिया. पहले क्या हुआ करती थी? थेब्स हुआ करती थी, उन्होंने इसको कर दिया एखेंटन, नॉन नाउ एज अमरना. और आज की डेट में इसका नाम क्या है? आज की डेट में इसका नाम है अमरना. तो ये काम उन्होंने किया जो नए राजा बने. He further shocked the country by attacking Amun, a major god. उसके बाद पूरे देश को उन्होंने स्टंड कर दिया, शॉक्ड कर दिया. सब लोग सरप्राइज थे क्योंकि उसी देश के एक और देवता जिनका नाम था एमुन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स. उन्होंने इनकी सारी मूर्तियां तोड़ दी, सारी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके जितने भी मंदिर थे उनको बंद कर दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago Research Center in the Luxor. जो शिकागो रिसर्च सेंटर है उसके एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है रे जॉनसन. वो कहते हैं ये समय जब एमुन जो ईश्वर हैं उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, ये बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक समय रहा होगा. तो वो यहाँ पर कहते हैं the family that had ruled for centuries was coming to an end. He is saying the family who ruled over 4 decades, for 40 years, now the end of the family, the end of a dynasty. It was very very close, it was very very near. He is saying this. And that Akhenaten went a little wacky. उसके बाद वो कहते हैं जो राजा हैं एखेंटन वो थोड़े से वैकी हो गए, सनकी हो गए, सनक चढ़ गई उनके अंदर. सन की व्यक्ति को हम एसेंट्रिक भी कहते हैं और साथ में विम्सिकल भी कहते हैं. राइट, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे. आफ्टर एखेंटन्स डेथ, एखेंटन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखरे, एक और रहस्यमय राजा आए जिनका नाम था सेमेनखरे, appeared briefly and excited with hardly a trace. वो कुछ ही समय के लिए आए और ज्यादा उनका वर्णन नहीं है. There is no description of him too much. And then a very young Tutankhaten
उसके बाद एक बहुत ही जवान रूलर आए जिनके बारे में चैप्टर है, नाम था उनका तुतनखातेन। टुक द थ्रोन, उन्होंने सिंहासन पर, थ्रोन का मतलब सिंहासन, उन्होंने गद्दी संभाली। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? हम उन्हें जानते हैं किंग टट के नाम से। और इस चैप्टर का नाम भी है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, इन्हीं की कहानी है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामुन, बॉय जो किंग थे उन्होंने अपना नाम बदल दिया और रख दिया टुटनखामुन। यहां पर आप यहां पर नजर डालेंगे तो लिख रहा है बाद में AMUN, मतलब जो पुराने गॉड थे उनका रिवाइवल उन्होंने किया। लिविंग इमेज ऑफ एमुन, मतलब क्या है इसका? जो पुराने गॉड है एमन, उनकी एक जीती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसो रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, इसको आप देख सकते हैं रीस्टोरेशन, दोबारा से पुरानी चीजों को अस्तित्व में लाना, पुरानी चीजों को प्रचलन में लाना और पुराने गॉड की पूजा पाठ करना, ये उन्होंने किया। ही reigned for about 9 years and then died unexpectedly, उन्होंने लगभग केवल 9 ही साल शासन किया। एंड आफ्टर दैट ही डाइड, nobody knew how he died, that is a mystery. Regardless of his fame and the speculations about his fate, कोई नहीं जानता उनकी प्रसिद्धि के बारे में, अच्छे से कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था उनके भाग्य के बारे में। So nobody knows about it. So let's move to the next slide. Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट में बहुत सारी ममीज रही, बहुत सारी डेड बॉडीज थी जिन पर एक रेसिन लगाकर उनको ममीज बनाया गया, और उनमें से एक थी किंग टट की। हाउ मेनी? कुल मिला के कितनी ममीज हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। Nobody knows about it, nobody is confident about it. The Egyptian mummy project which began an inventory in late 2003, जब सन 2003 में इसकी एक लिस्ट बननी शुरू हुई कि that how many total number of mummies were found in Egypt, has recorded almost 600. So you cannot expect that what I am talking, over 600 mummies were found. That means the list is 600 and it is more than that. So far and still counting. आज भी ममीज मिलती हैं और अभी भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. तो कह रहे हैं नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सिमेंस ने एक सीटी स्कैन की मशीन को डोनेट किया ताकि ये जितनी भी ममीज हैं इनका सीटी स्कैन किया जा सके, अच्छे से इनको अच्छे से समझा जा सके कि इनके अंदर क्या है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। शुरुआत में जितनी भी ममीज को स्कैन किया गया उनमें सबसे पहला नाम आता है किंग टट का। कॉन्फिडेंटली वी कैन नॉट से दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट, बट यस, जो शुरुआत में हुआ उनमें से एक थी। इन डेथ एज इन लाइफ, चाहे मरे हुए लोगों का स्कैन हुआ हो या फिर जीवित लोगों का, उनमें से मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। कुल मिला के यहाँ पे कह रहे हैं किंग टट हर चीज में आगे रहते थे, युद्ध में आगे, लड़ाई में आगे, और यहाँ पर मृत्यु में भी सबसे आगे रहे। तो काफी छोटी उम्र में, एट अ वेरी लिटिल एज, इन हिज लेट टीन्स, एट द एज ऑफ 17, 18, 19 he died. So he is saying that King Tut, he was in the habit of doing leadership, he was leading from the front, और डेथ के मामले में भी वो सबसे आगे ही रहे। So बेटा, this is what we have studied. Now again your homework, what you have to do, on each paragraph you have to make 2 small questions, and after that you have to answer this. Suppose in this paragraph, which question we can make? We can make that who donated the CT scan machine. The answer would be CT scan machine was donated by National Geography Society and Siemens. So you have to make questions. That is my job as well and that is your job as well. But आपको बनाना है. I want you people to be creative. So that's it for the day. Thank you so much. God bless you. Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhav Rao Devras Saraswati Vidya Mandir. So beta, we have come to the end of the chapter. हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। पार्ट 8 है ये, और इस पार्ट 8 में क्या है, हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इसमें। अ सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी हैड टू टो। तो यहाँ पर कहते हैं जो सीटी स्कैन की मशीन है उसने सर से लेकर पांव की अंगूठे तक पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस।
1700 एक्सरे की जो इमेजेस हैं लगभग वो ली गई इन क्रॉस सेक्शन, हर डायरेक्शन से ली गई। टट्स हेड स्कैन्ड 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। उसके एक एक बारीक स्ट्रक्चर को लेने के लिए पूरे प्रयास किए गए और जो उसके स्कैन किया गया उसका जो साइज बताया वो 0.62 मिलीमीटर बताया गया। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, हर चीज की बारीकी से, एरी डिटेल मतलब बारीकी से जांच की गई, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया जो किया जाना चाहिए था। विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, पूरी की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया, उस बॉडी में क्या था क्या नहीं था। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रॉब द सीक्रेट्स। प्रॉब का मतलब जांच पड़ताल करना। एक जो टीम थी एनाटॉमी की, रेडियोलॉजी की और फोरेंसिक की, उन्होंने सीक्रेट्स की जांच पड़ताल करना शुरू किया। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ ग्लाइडेड ब्यूरियल शिरीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इस बॉडी को जिस चीज ने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा था, जिस चीज ने अभी तक बचा के रखा था, उन पंखों वाली देवी ने जिन्होंने अभी तक इसको बचा के रखा था, तो वो जांच पड़ताल इस चीज की कर रहे थे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, उस रात जितने भी लोग हैं, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी वर्कमैन हैं, उन्होंने टट की बॉडी को टॉम से निकाला। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइंब द रैंप, जितने भी लोग उस पालकी की तरह वो बॉडी को लेके जा रहे थे। क्लाइंब द रैंप, वो एक रैंप पर चढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, और उसके बाद बाहर जो रेत है, सैंड है, वो स्विर्लिंग एकदम पूरे तरीके से घूम रहा है। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर वो चढ़े। इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उस हाइड्रोलिक ट्रेलर पर जिसने पूरे के पूरे स्कैनर को पकड़ रखा था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद 2 लोग और आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, स्प्रिंट का मतलब तेजी से दौड़ना, भागना। एंड वो लोग रन करके, भाग कर पास में जो ऑफिस था उसके पास गए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फेंस, और वो एक सफेद रंग का प्लास्टिक का जो फैन था उसके साथ वो लौट कर आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट, इतना महंगा $1 million स्कैनर ही इट स्टॉप्ड वर्किंग, इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रेत है वो उनके कूलिंग फैन में चला गया। कर्स ऑफ द फेरो जॉक्ड द गार्ड नर्वसली, वहीं पर एक गार्ड खड़ा था। ही स्टार्टेड मेकिंग फन एंड ही सेड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो किंग टट हैं, राजा हैं, उन्होंने श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया। उसने ये बात मजाक में कही। Eventually the substitute fence worked well enough to finish the procedure. आखिरकार जो फेंस वो दोनों ले गए थे उठाकर, वो अच्छे से काम किया ताकि काम पूरा हो सके। It really worked nicely. After checking that no data had been lost, they checked everything whether any kind of data has vanished, but it did not vanish. It was there. The technician turned it over to the workman. उसके बाद टेक्नीशियन ने क्या किया, जो टट की बॉडी है उसको वर्कमैन को दे दिया। Who carried him back to his town, और वो उसको लेकर आए वापस मकबरे में। सारी स्कैनिंग करने के बाद, सारा काम करने के बाद मकबरे में बॉडी को फिर से रख दिया गया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, मतलब लगभग 3 घंटे से भी कम समय में उसको कॉफिन से हटाया गया था। The pharaoh again rested in peace, और जो राजा था किंग टट वो दोबारा से अपने मकबरे में, अपने उस कॉफिन में आराम कर रहा था। Where the funerary priest had laid him so long ago, उसको वहीं लिटा दिया गया जहां पर जो पुजारी लोग थे, जो पंडित लोग थे, उसके दाह संस्कार के बाद उसको लिटाया गया था। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है बेटा इस चैप्टर का। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut. पीछे की तरफ एक जो टेक्नीशियन है, उन्होंने कुछ एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें ली किंग टट की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, बहुत सारे पिक्सेल्स जो हैं वो टूट गए और एक ग्रे कलर का हेड बन गया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, जो टेक्नीशियन ने हर एक हिस्से को इधर उधर करके, उनको जंबल करके एक अलग डायरेक्शन में भेजा। नेक
vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. जिस तरीके से बायोलॉजी की एनाटॉमी क्लास होती है और जो स्केलेटन की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन की हड्डी है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रे, वो बिल्कुल इतनी साफ नजर आ रही थी जैसे एनाटॉमी की क्लास में आती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, बाकी जो इमेजेस हैं उसमें एक हाथ नजर आ रहा था. सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, बहुत सारे रिब केज जो पसलियों की केज है वो नजर आ रहे थे. एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का एक हिस्सा, स्कल का एक हिस्सा नजर आ रहा था. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब पूरा का पूरा दबाव हट चुका था क्योंकि सीटी स्कैन हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ही हवास स्माइल, अपनी चेयर पर बैठते हुए जो ज़ही हवास है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखती है और कहते हैं कि वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ. आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो ये भी कहते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया पिछली बार. नॉट फॉर अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया. ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. वो कहते हैं कि भाई मैं इतना चिंतित था, मैं इतना परेशान था कि मैं सोया ही नहीं, लेकिन अब मैं सो सकता हूं. इसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ है आपका. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, वो कहते हैं उसके बाद जब हमने ट्रेलर को छोड़ा और हम जा रहे थे स्टेयर्स पर सैंडी ग्राउंड में, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा एकदम रुक गई. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी, उसने सब कुछ शांत कर दिया, सब कुछ रोक दिया. लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मृत्यु होने पर, डेथ होने पर सब कुछ, एवरीथिंग स्टॉप्स. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये जो घाटी थी जहां से लोग डिपार्ट होते थे, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम स्टूड ओरियन द ऑस्टिलेशन दैट एंशिएंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ. वहां पर देख सकते थे कुछ ऑसिलेशन को, कुछ नक्षत्रों को, कुछ ग्रहों को, वो आसमान में साफ दिखाई दे रहा था और इनको वो क्या मानते थे, वो गॉड मानते थे. कौन से गॉड? आफ्टर लाइफ, द सोल ऑफ ओरिसिस. ओरिसिस एक ईश्वर है, उनकी आत्मा वो मानते थे. गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ओरिसिस कौन है? मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसके वो भगवान है. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वहां से वो क्या देख रहे हैं, जो बॉय किंग था, जो फेरो था, किंग टट था, ही वॉज लुकिंग at him and he was giving him a look. So beta, this is the chapter is over. Line by line explanation has been given. After this, now I am telling you some important question. So just have a look. So dear students, now I am telling you some important questions. I will tell you a few answers also, but as a homework I am giving you a few questions. Discovering Tut, the saga continues, question and answers. So understanding the text, this is from your book of NCERT. Give reasons for the following. First, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. उसकी बार-बार जांच पड़ताल क्यों की गई बॉडी की? तो आंसर है King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because of his history. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक इतिहास था. His treasures which he was buried with and to know the reason behind his death. Everybody want to know that what was the reason behind the death of King Tut. And everybody want to know what were the mysteries, what was the history. So next question is Howard Carter's investigation was resented. जो उनका इन्वेस्टिगेशन था वो किस तरीके का था, इसके बारे में आप बताइए. Howard Carter investigation was resented because of his unscientific methods. उनका जितना भी मेथड था वो unscientific था, वो मतलब वो वैज्ञानिक आधार के ऊपर डिस्कस बेस नहीं था. टू कट ऑफ हिज बॉडी, स्पेशली जो बॉडी को काट कर अलग किया गया रेसिन और कॉफिन से, फ्रॉम द टॉम, जिस तरीके से मकबरे से उस कॉफिन से बॉडी को अलग किया गया, ये अनसाइंटिफिक था. ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन टट्स वेल्थ, उनका ध्यान, उनका जो फोकस था वो उस धन धान्य पर भी था. वट एवर द ज्वेलरी, वट एवर द गोल्ड, वट एवर द ऑर्नामेंट्स ही वर गेटिंग फ्रॉम दैट बॉडी, and less onto the solve the mystery of Tut's life and death. उनका मेन फोकस टट की लाइफ और डेथ को बताने पर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजन्स टू रेज द किंग रिमेन्स. उन्हें चिजल अवे, छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, क्यों? कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजन्स टू रेज द किंग रिमेन्स
because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin as the resins had hardened. क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी चिपक गई थी, सीमेंट की तरह चिपक गई थी और गोल्ड से एकदम चिपक गई थी, इसलिए छेनी हथौड़े का इस्तेमाल उनको करना पड़ा. No force could move the body away. कोई भी ताकत उस बॉडी को अलग ही नहीं कर पा रही थी. इनफैक्ट उन्हें 149 डिग्री फ़ारेनहाइट धूप में भी रखा, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा. इसके बाद टट्स बॉडी वॉज बरिड अलॉन्ग विद ग्लाइडेड ट्रेजर्स. बहुत सारा खजाना, बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारी चीजें रखी गई बॉडी के साथ. क्यों? आप जानते हैं बॉडी को रखा गया बिकॉज ऐसा माना जाता था, दे बिलीव द रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रेजर्स विद देम इन देयर आफ्टर लाइफ. वो मानते थे कि भाई इस जिंदगी के बाद भी एक और जीवन है और अगले जीवन में उनको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने साथ में ये पूरा का पूरा सामान रखा. ये क्वेश्चन आपको करने. द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनआमुन. उन्होंने अपना नाम जो किंग टट है वो तुतनखातेन से बदल के तुतनआमुन कर लिया. यहां पर एटेन एक गॉड, आमुन दूसरे गॉड. क्यों करा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन. जो सीटी स्कैन हुआ उसके परिणाम क्या है? व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांसेस in technology that have improved forensic analysis. जितना भी आजकल forensic analysis है उसमें जो भी एडवांसमेंट आया है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएंगे. स्लाइड इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ. वो कहते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में आप बताइए, इसका क्या मतलब है. जो किंग टट की मम्मी है, चाहे वो मृत्यु में हो चाहे वो जन्म में हो, तो वो सबसे पहले कैसे थे, कैसे वो सबसे पहले हुआ, तो ये आपको बताना है इसमें. एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. हमारे परंपरा, हमारे रीति रिवाज और जो हमारे किसी को दफनाने की दाह संस्कार की प्रथा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए. तो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? यू ऑल हैव टू मेंशन. So beta, this is the chapter over. I hope you all must have enjoyed it. आपको समझ में आया होगा. Thank you so much. God bless you.